So in order to stay healthy, the next comes is vaccination. There are a number of dreadful diseases for which the vaccines are available, and then several new diseases comes. As this year we have come across corona, COVID-19, so for which the vaccination is still in the trial phases. And yes, today's paper we have read, and TV news we have read that one person who was taking the vaccine test is having some disease. So that means Oxford University, they have become rather what you call careful, and they have suspended their vaccination program for some time. Okay, so vaccine, now you know what is vaccine and all, how it is made and all, that we'll study little later in the same chapter as it is there. तो ये तो हो गया हमारे, that is the common ways to keep healthy. Okay, now we will classify the diseases. So these are diseases. Diseases can be broadly categorized into two types, that is the infectious disease diseases and non-infectious. Infectious diseases are caused by pathogens. So depending on the type of pathogens, we name them. Then there may viral, which are caused by virus, bacterial, then protozoal, then fungal, and last is the worm, which are causing helminthic diseases. There are a number of viral diseases which are known to us, starting from brain, that is meningitis, eyes, conjunctivitis, hepatitis of liver, common cold and cough, that is influenza, then AIDS, then smallpox, chicken pox, and measles, and COVID-19. Okay? Many other diseases come in being between, that is वो अपन ने पढ़ा पिछले सालों में कौन कौन सी बीमारी आ गई थी. That is if you remember the name of the chikungunya, and then came what was that, the swine flu and others. Bacteria also cause a number of diseases. Tuberculosis, commonly known as TB, tetanus, pneumonia, pneumonia, cholera, food poisoning, then what you call that, gonorrhea, GONORRHEA, syphilis, SYPHILIS, etc. Then protozoa, malaria, most common. Then what do you call that, trypanosomas से होने वाली बीमारी, sleeping sickness, then
then what you call that, ameliorative dysentery, fungal, many skin diseases, and what you call food poisoning. And helminthic man, ascariasis, teniasis, teniasis, then the diseases which are caused by pinworm, hookworm, and many other worms are there. So there are so many diseases which are caused by, ये तो कुछ नाम दिए हमने, only just for the representation, that there are so many diseases, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं which are caused by these pathogens, ठीक है? And since they are pathogenic diseases, they can move from one body to another. They can move from one body to another. Suppose I got a disease, COVID. Suppose I got COVID. So anyone who comes in contact of me can get this disease by means of sneeze or cough, or if I cough, I put my hand here and I get so many viruses here, and anybody come across, I can shake hand with him or her, and like that I can just transfer the disease from one person to another. कई सारी बीमारियां हम ऐसे ही दे देते हैं दूसरों को, ठीक है? So all the infectious diseases we'll study, that is what are the common mode of spread. अभी बता देता हूँ common mode of spread कहाँ से diseases spread होती है. If this is there, it will come in the video, then you can easily see it and copy it. Mode of spread is this. Common mode of spread of the disease. कैसे जाएंगी ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में? कैसे जाएंगी? बाय contaminated food, water or air, by physical contact. Where you shake hand or kiss or hug or this thing, किसी न किसी तरीके से आपकी बॉडी कांटेक्ट में आ रही है फिजिकल, ठीक है? बाय शेयरिंग आर्टिकल्स, स्कूल है, कोविड का टाइम है, वी ऑल टीचर्स आर टीचिंग. मेरे से पहले कोई टीचर ने माउस को हाथ लगाया होगा. दैट कीबोर्ड इज ऑल्सो बीन टच, द मॉनिटर इज ऑल्सो बीन टच, डस्टर इज ऑल्सो बीन टच, मे बी दिस chalk is also being touched, the table is also being touched. So all these places now I am sharing. Sometime when there is a fancy dress program, you simply go to one of the shop and hire the dress. You are sharing it. पता नहीं आपसे पहले किसने पहना होगा. Who is going to wash it? Nobody washes. The same dress is going year after year after year after year. Swimming pool, ठीक है? Pen, very often you go to any bank, you go to any office, nobody carries pen. Sir, आपका पेन देना sir, sign कर दो. So he has just taken your pen. We don't know that what is the physical status of that person, whether he is suffering or not suffering, whether he has got some virus or bacteria or other pathogen in his hand or not. All the time we will not carry that disinfectant. No, nowadays the thing is serious, so we are carrying. But normally all these years from the time of I am born till date, मैंने तो कभी carry नहीं करा disinfectant always. But so many times we must have
ट्रेन में हम जाके बैठ जाते हैं, वी डोंट नो दैट हु वाज सिटिंग बिफोर मी. पब्लिक टॉयलेट, वी डोंट नो हु वाज देयर बिफोर अस. फ्लाइट्स, लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी, फ्लाइट एक्सपेंसिव है तो वहाँ पे, बट थिंग तो वही है ना, है ना. सो यू आर शेयरिंग सो मेनी थिंग. द डोर नॉब्स, है ना, आपसे पहले पता नहीं कितना ने धक्का लगाया हुआ उस डोर को. दे मस्ट हैव टच. यू ऑल्सो गॉन नाउ. एवरी टाइम यू कैन नॉट किक इट, नो. There are some respectful places there. You will have to push. You will have to be gentle. You will be, boss may be sitting there. You cannot push it and go, है ना. So what? हर बार ऐसे धक्का लगा के थोड़ी जाएंगे. So you are touching, knowingly or unknowingly. Maybe that it is a compulsion. Maybe that you just ignored. जान के भी आपने कई बार इग्नोर करा. हम कर रहे हैं ना जान के भी. I know that मेरे से पहले किसने हाथ लगाया हो, ठीक है. बट आई एम थिंकिंग दैट ही और शी मे ऑल्सो बट हैव बीन गुड हाइजीन लाइक माई. आई एम हाइजीनिक. सो आई थिंक दैट ही और शी हु वर टच्ड बिफोर मी मस्ट ऑल्सो बी. और उसको कोई बीमारी नहीं. यही तो हम कर सकते हैं ना. इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं. हमेशा दूसरों पे शक की नज़र से थोड़ी देखेंगे कि नो, ही और शी इज़ गॉट डिजीज एंड आई एम डिजीज फ्री. आई कैन नॉट पुट दैट टाइप ऑफ कंडीशन, नो. तो हमको मानना ही पड़ता है कई बार कि तो शेयरिंग द फिजिकल पार्ट बाय शेयरिंग फूड. सेंट पॉल्स में तो बहुत अच्छी यूनिटी है. आधा खाया समोसा भी कोई भी छीन के ले जाता है. वाटर बॉटल तो 90% बॉटल आफ्टर इंटरवल, किसी के बॉटल में पानी बचता ही नहीं है. दे आर आउट बिफोर इंटरवल एंड देन दे आर, वन पर्सन हैज गॉट बॉटल, एवरीबडी इज ड्रिंकिंग फ्रॉम इट, वन सिप, हाफ सिप, ठीक है. सो इट्स अ कॉमन थिंग. शेयरिंग फूड आर्टिकल्स. कोई एप्पल खा रहा है, दांत गड़ा करके, अरे तुम तो दे दे यार, मैं तो खा लूँगा, ठीक है. तो यार घर में भले भाई बहन का झूठा नहीं खा रहे, है ना, लेकिन स्कूल में सब चलता है. तो शेयरिंग फूड, है ना. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. There are a number of diseases where pathogens are passing through the infected or contaminated blood by vectors. Vector means the disease carriers. The word vector stands for carrier. So there are a number of carriers which are carrying the disease. Like rabies virus is carried by either dog or by monkeys or by pigs or by camel. Any other organism can be rabies, containing rabies virus. Mainly it is dog. हम हमेशा उसको एसोसिएट डॉग से करते हैं. मलेरिया, वेराइटी ऑफ मलेरिया, देन डेंगू, देन चिकनगुनिया, देन एनसेफेलाइटिस, ये सारे जो हैं वो तो मस्कीटो से ही चले जाएंगे. तो मस्कीटोज आर द वेक्टर्स. These are the direct vectors. Then there are some mechanical vectors are there, like cockroaches, there flies. They are not injecting the pathogen in your body, but they are putting into your food. लो खाओ, ठीक है. Now there are number of food articles. हम कई बार जल्दी में हो जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, कई बार कुछ अचानक से कोई अरे जल्दी आए, कितना अच्छा सीरियल आ रहा है करके, तो हम खाना छोड़ करके उधर चल जाते हैं. एंड वी फॉरगॉट टू कवर इट. एंड बाय द टाइम मस्कीटोज, flies and sometimes cockroaches even enjoy their treat and they leave some pathogens there. So they are vectors. When we are eating on the street vendors, और इंडिया में तो कहते ही ऐसे ही हैं, वो तरबूज काट कर रख देता है एंड लार्जर द नंबर ऑफ फ्लाइज. तो देखो कितना मीठा है, ऑल द फ्लाइज आर देयर. उसके में तो वो मक्खी नहीं है, इसका मतलब उसका तो मीठा ही नहीं है. सो वी पीपल आर जस्टिफाइंग आवर सेल्फ इन टू मैनी डिफरेंट वेज, ठीक है. एंड वी आर इग्नोरिंग दैट दे मे बी डिजीज कैरिंग वेक्टर्स. एंड द लास्ट इज sexual transmission. There are number of diseases which are caused or which are spread by means of STDs. We already studied in chapter 3. तो चैप्टर 4 से, तो चैप्टर 4 में हमने पहले ही पढ़ लिया है STDs which are caused in the human beings, ठीक है. 1 minute. Okay, so these are the simple modes of the spread of infection. ओके, तो हमको इन सब से बचना है. सी, कोविड का वायरस तो रहेगा,
बट व्हाट वी हैव टू डू इज हमको ये सारी चीज़ों से बचना है। कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर नहीं खाना है, किसी से फिजिकल हाथ नहीं मिलाना है, टच नहीं करना, हक तो बिल्कुल नहीं करना, किस तो बिल्कुल ही नहीं करना, अननोन पर्सन के साथ में ये सारी चीज़ें नहीं करना। इफ़ यू आर डेड श्योर कि दैट ही और शी इज नॉट हैविंग डिजीज, ठीक है, यू कैन टेक अ रिस्क, बट यू डोंट नो। उसको आप सुबह 10 बजे देख रहे हैं, उसको वो नहीं हो सकता है सिम्टम, उसके 1 मिनट बाद में हो सकता है, ठीक है। सो ये तो फैमिली मेम्बर के साथ में वी आर डेड श्योर कि हमको मालूम है कि हाँ भाई जैसा मैं हूँ वैसे वो। शेयरिंग द आर्टिकल्स वेरी डेंजरस, मैंने बताया, माउस, डोर नॉब, पेन, कीबोर्ड, द लैपटॉप, है ना, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। वो रजिस्टर रखा है, उसके ऊपर पेन रखा है, एवरीबडी इज कमिंग यूजिंग दैट सेम पेन। इग्नोरेंटली 5 रुपए का पेन नहीं लाएंगे, वही पेन से साइन करेंगे, एंड देन वी कम टू नो कि सो एंड सो टीचर हैड दिस डिजीज, और यार मेरे को तो नहीं हो गया, मेरे को तो नहीं हो गया। जाओ गेट योर टेस्टेड, बॉय क्या हो गया क्या नहीं हो गया कैसे मालूम पड़ेगा, व्हाई यू टू टच, है ना। तो दैट इज द थिंग, है ना। देन by contaminated food there are number of diseases which are caused because of the spread by means of food। अब पढ़ेंगे निमोनिया है, टाइफाइड है, टिटनेस हो जाए, है ना, एंड कॉलरा है, फूड पॉइजनिंग है, एंड वर्म्स हैं, दे ऑल आर कॉजिंग बाय मीन्स ऑफ द फूड। contaminated food, contaminated ये contaminated यहाँ लिखा है, contaminated food, water है ये, ठीक है। एयरबोर्न डिजीज है, काहे को मास्क लगाए घूम रहे हैं, बिकॉज एनीबडी कैन स्नीज इन फ्रंट ऑफ यू, एनीबडी कैन कॉफ इन फ्रंट ऑफ यू, एनीबडी कैन मे बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ टॉक, ऑल्सो द स्पिट मे बी कमिंग आउट एंड ऑल। तो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, है ना। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तौबा तौबा, अभी के टाइम में तो हमको अच्छे से सोच लेना चाहिए। ऑल्दो बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड इज बीन टेस्टेड फॉर सेवरल डिजीजेज, बट नॉट फॉर ऑल डिजीजेज। एंड अगेन द टेस्ट तो वो वाली लक वाली बात है ना, मान लीजिए कि 1000 बच्चों में कोई एक बच्चा इन्फेक्टेड है, मतलब आप ये सोचिए कि 1000 बच्चे आपके वाइट शर्ट पहन के चल रहे हैं और एक बच्चा येलो शर्ट पहने हुआ है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्पॉट दैट सिंगल चाइल्ड। बच्चे आते हैं ना कई बार सैटरडे को, दे आर कमिंग इन द कलर, मतलब अदर ड्रेस, देन वी हैव टू गो टू क्लास और बच्चा क्या करते हैं, छुप गया वैसे छुप गया है ना, और दे हाइड इन द वॉशरूम में ना। हाउ डिफिकल्ट। नाउ आप सैंपल लेंगे ब्लड का, यू मे नॉट गेट दैट पर्टिकुलर वायरस विच इज हिडन समवेयर। पूरी बॉडी में 5 लीटर खून है, या टेस्टिंग ओनली विथ 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, एंड 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में भी वायरस आया ये जरूरी थोड़ी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम it may be possible that the symptoms are there but they are in the lesser in number, so that they are not tested positive. For such type of diseases we have to follow the culture test. We have to allow it to culture for some time so that the pathogens should also multiply and the chances of their occurrence into every sample may be there. Or if the symptoms are much, अभी मैं जाऊँ और मैंने सुबह वो फलाने टीचर से मिला था, उसको तो मतलब बुखार आ रहा है, इसका मतलब इट मे बी टू मी ऑल्सो एंड आई ऑल्सो गेट टेस्टेड माई सेल्फ, इट विल कम नेगेटिव ओनली। इफ एट ऑल वायरस आर देयर, दे मे बी 5, 10, 50, 100, 200, 500, 50,000 वायरस, बट दे मे नॉट बी इन द एवरी ड्रॉप। इट विल टेक sufficiently long to spread in the entire content of the blood, then every drop which is being tested, the content of virus will or pathogen will be there. तो इसलिए क्या है कि ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है। टेस्ट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। वेक्टर्स वगैरह से तो बचना ही है, तो हम करते ही हैं। मच्छर के लिए मच्छरदानी लगा लेते हैं, इंसेक्टिसाइड्स लगा लेते हैं एंड ऑल। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सम टाइप्स। They can be genetic, they can be malnutrition, they can be habit forming or lifestyle,
प्लस फेलियर ऑफ ग्लैंड, यहाँ कुछ फेलियर्स लिख देता हूँ, where the organs can fail or the glands can fail. कोई ब्लाइंड है तो इनमें से कोई कारण थोड़ी है. Will not say that the blindness is because of the malnutrition or blindness is because of the same accidents हैं. That's a failure. हम अपना ध्यान नहीं रख पाए, बिड़ गए या हम फेल हो गए सीधे सीधे स्टेप पे चढ़ने में, and we slipped and we got our hand fractured. Now if someone's hand is fractured, he cannot say that he is healthy. ठीक है? So this can be failures or accidents. Failures and accidents we will not discuss here. और we can discuss failure के कारण जो है gland failure, hormonal जो होती है, hormonal diseases which you know that is maybe diabetes. One of the largest patient of the world of diabetes are found in India, and that is why it is known as capital of diabetes. India is known as the capital of diabetes. And many other diseases are caused due to the lack of hormones, and you must have studied about them in class 11 last chapter. हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी के फेलियर से क्या होगा, थायराइड के और थैलेमस क्या कहते हैं थाइमस के और पैंक्रियाटिक और एड्रेनलिन और गोनेड्स, तो वो हम पढ़ चुके हैं. सो आई एम नॉट कंसिडर दैम हियर. जेनेटिक कौन सी, ये भी हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं. ठीक है? सो दैट ऑल्सो वी हैव डन. मैलन्यूट्रिशन के कारण हमने पढ़ा, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन के कारण जैसे क्वाशियोकर हो सकता है, मेरास्मस कैन बी देयर, lack of iron or anemia, lack of vitamin D can cause rickets, osteopenia. ठीक है ना, हड्डियाँ बार बार टूटती आसानी से. ठीक है? एंड अदर विटामिन कैल्शियम की कमी से, ये कैल्शियम की कमी से भी होंगे और विटामिन डी की कमी से भी होंगे. विटामिन डी, एनीमिया आयरन की कमी से भी होंगे एंड फॉलिक एसिड की कमी से भी होंगे, प्लस विटामिन डी, क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से. ठीक है? सो देयर आर नंबर ऑफ डिजीज विच आर कॉल्ड द एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड. ज़्यादा ही खा लिया तो ओबेसिटी हो जाएगी. यहाँ पे ये तो सारे कम्बल हैं ओबेसिटी को मिलते हैं. एंड हैबिट फॉर्मिंग में हमने पढ़े लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी डिजीज भी है स्टडी जो हमको जैसे स्मोकिंग के कारण हो रही है, जैसे ड्रग्स के कारण हो रही है. बेचारा सुशांत क्या मर गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जोड़ दी उसके. मरने के बाद कुछ भी बोल दो अगले आदमी के, तो बुरी बात है ये, हाउ बैड इट इज़. तो ड्रग्स है ना, एंड ड्रग्स के बारे में पूरा हमारे इसके अंदर काफ़ी सारा कुछ है. स्मोकिंग we have to study in detail in this chapter. Then फिर मैंने बताया आपको lack of exercise and all, तो उन सबसे क्या होता है. तो there are some number of things which we have already done. यहाँ पे भी दे रखा है among the non-infection diseases, cancer is the most major cause of death. इसमें कहीं पे भी नहीं आया कैंसर, एलर्जीज. ठीक है? वो भी है, हम उनको कहाँ कैटेगराइज करो पता नहीं. तो कैंसर कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रेडफुल डिजीज़. ठीक है? और इसके बाद वी विल इवन स्टडी अबाउट क्या कहते हैं, क्या बोला था एलर्जीज. ठीक है? तो दीज ऑल थिंग्स विल इंक्लूड. तो कल की क्लास में विल स्टार्ट कॉमन ह्यूमन डिजीजेस. तो टिल देन गुड बाय चिल्ड्रन, एंजॉय.